Hello friends. Hello friends. In P block element majority today's lecture number 2 is based on only memory based. So first question generally useful in objective, and that is occurrence of elements of group number 50. See first element, that is nitrogen. Nitrogen, you know that 78% volume by volume present in atmosphere as nitrogen gas. Other sources of nitrogen is a Chile saltpeter and Indian saltpeter. Chile is the area of South Africa and India you know very well. And the chemical formula of Chile saltpeter is the nanocar number 3, sodium nitrate. Its a chemical name is a sodium nitrate, NaNO3. Remember. Beyond this, it is present in plants and animals as a protein. In plant and in animal as a protein. All protein are nothing but nitrogenous compounds. Then after phosphorus, observe phosphorus generally obtained from apatite or general formula asked in exam is Ca9PO46CaX2, and this X is not only halogen, maybe fluorine, chlorine and hydroxyl group. So three types of apatite minerals are possible, ores are possible. First one, if in place of X fluorine is there, then it is a fluorapatite. Chlorine is there, then it is called chlorapatite. And OH group is there, then it is called hydroxyapatite. Remember this. This is the general, it's not a girlfriend, it is general formula. General formula means if fluorine is there, it is called fluorapatite. Chlorine is there, then chlorapatite. OH is there, then hydroxyapatite. Prepare it well. Then phosphorus also present in milk and egg, and that protein is called phosphoprotein. In present in milk as well as in egg, phosphoprotein. Also present in teeth and bones of animals and in living cell. Phosphorus is present in our bones, in our teeth and in our living cell. Then after another three element, arsenic, antimony and bismuth, they are present in earth crust as a sulfide ore. Formula not given in our books, I have not written, but if you are interested in formula, then As2S3 is the sulfide ore of arsenic. Sb2S3 is the sulfide ore of antimony. Bi2S3 is the sulfide ore, means this is arsenic sulfide, antimony sulfide and bismuth sulfide. So in this ore,
arsenic present, antimony present, and bismuth present. Formula not important. Remember, last one is a moscovium. Moscovium, you know, atomic number is 115, atomic mass is 289. As already you have written in electronic configuration, 289 gram per mole. Moscovium is not naturally occurring element, it is a man-made artificial element. It is prepared in laboratory. So in this chapter we don't have to study the chemistry of moscovium because moscovium chemistry is not that much known, and this element information is also not fully available, and its chemistry is under investigation. Another thing, it is a radioactive element, and whenever there is a radioactive element, then that we don't have to study in a simple chemistry. It's a special chemistry. It is called nuclear chemistry. So forget about moscovium. Forget about means you have to remember this thing and other some information given in book. You are asked question, which of the following is the radioactive element in group number 15? So moscovium is there, radioactive. Which of the following is synthetic element? Then moscovium. It is a very trace element. It's obtained in a very minute quantity, and its chemistry is under investigation. So its reactions we don't have to study, and its half-life period is not given but very small. Half-life period means one element converted to another element. मानो कि हमारी एज 100 साल की है. If our age is of 100 years, then if 50 years completed means half-life completed. Like that for radioactive elements, if they converted from one element to another element in 1 year, 50%, then it is called its half-life. And half-life we will discuss in detail in a chemical kinetics. तो यहाँ पे ये occurrence ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 ख़त्म होता है. ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, फिर भी मैंने पॉसिबली आपको समझाने की कोशिश की है. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 25% जो आता है वो मेमोरी बेस्ड आता है, तो जो आपको याद रखना पड़ता है. अब हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 15. तो पीरियोडिसिटी मेजॉरिटी you have studied in 11th standard in chapter number 3, periodicity and periodic properties and classification of elements. And in that table, periodic table, you studied that down the group radius increases, left to right radius decreases, and you studied the periodic trends of atomic radius, ionic radius, covalent radius, van der Waals radius, electron gain enthalpy, ionization enthalpy, electronegativity, metallic property, non-metallic properties. ठीक है. अगर जितना आपका पीरियोडिक टेबल वीक होगा उतनी मुश्किली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ सकती है समझने में. फिर भी हम कोशिश करते हैं. And another way, that is revise the periodic table concepts written in your book. तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिसिटी, तो हम वही चीज़ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, हालांकि सब नहीं करेंगे. कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ग्रुप नंबर 16-17 में आएगी, 15 में इतना वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती. metallic properties, non-metallic properties. Okay, so let us discuss about the covalent radius. Covalent radius as we move top to bottom in a periodic table, top to bottom in a periodic table, as atomic number increases, principal quantum number increases, you know very well.
22, 33, 344। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो प्रिंसिपल क्वांटम इंक्रीजेस बाय 1। First 22 means highest principal quantum number is 2. 33 highest principal quantum number is 3. 344 means highest is 4. 455 highest is 5. 4566 हाईएस्ट इज 6। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा वैसे ही साइज बढ़ती जाएगी एलिमेंट की। ये अपर साइड एरो जो है वो इंक्रीज दिखा रहा है, जहां पे मैं डाउन साइड एरो करता हूं वो डिक्रीज दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एरो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सीधा रिलेशन है, डाउन द ग्रुप मीन्स मूव टॉप टू बॉटम। इसका मतलब हुआ डाउन द ग्रुप एस एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस। अगर कोई बच्चा इतना नहीं लिखना चाहते तो एक स्टेटमेंट में खत्म हो रहा है कि 15 नंबर ग्रुप में एस एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस। मतलब कि नाइट्रोजन इतना है, फॉस्फोरस बड़ा, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। ठीक है, साइज इंक्रीजेस ड्यू टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस। इसको एटॉमिक रेडियस भी आप बोल सकते हो। Values not important. In our textbook values are given, that value you don't have to prepare. अब कैसे हो रहा है, तो इसमें ट्रेंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो एक्सेप्शंस वाला पूरा ब्लॉक है। तो इंक्रीज हो रहा है नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, हाई इंक्रीज। वाई? बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इज पुअर। अब यहाँ पे मैं शील्डिंग इफेक्ट डिटेल में नहीं लूँगा वरना बहुत टाइम लगेगा। आप इतना याद रख लीजिए, या तो शील्डिंग इफेक्ट वी ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल इन पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। फिर भी मैं बता दूं, तो अगर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है एटम का, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको न्यूक्लियस के साथ, उसको न्यूक्लियस के साथ जो है वो अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑर्बिट, मतलब 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आते, तो यहाँ 1, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मानो कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये जो शील्डिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन की इतनी नहीं है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है तो इतनी साइज इंक्रीज नहीं होगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज हायर, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नॉट अट्रैक्टेड विथ न्यूक्लियस, इसकी वजह से क्या होगा कि साइज बड़ी आएगी। अगर उसमें आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इतना याद रख लीजिए कि नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस इंक्रीज हाई हो रहा है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर है। देन आफ्टर फ्रॉम phosphorus to bismuth the increase is low। इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वहां पे जब आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हो तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो स्ट्रोंग हो जाती है। एंड ड्यू टू द स्ट्रोंग शील्डिंग इफेक्ट द इंक्रीज इन द रेडियस इज लो। एक बात समझनी है आपको, जनरल ट्रेंड में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये थोड़ा यूनिफॉर्म इंक्रीज नहीं आ रहा है कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस टू कल, कैसे कि एटॉमिक नंबर सिस्टमेटिकली इंक्रीज हो रहे थे। सिस्टमेटिकली मतलब कि 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसमें इंक्रीज ही है नाइट्रोजन टू एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस। लेकिन नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस जितना इंक्रीज देखने को मिलता है उतना फॉस्फोरस से बिस्मथ, हालांकि सब में इंक्रीज हो रहा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस,
फॉस्फोरस टू आर्सेनिक, आर्सेनिक टू एंटीमनी, एंटीमनी टू बिस्मथ। तो ट्रेंड रेगुलर ही है, लेकिन रेगुलर इंक्रीज नहीं है। बात को समझिए, रेगुलर इंक्रीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रीजन दिया है। और शील्डिंग इफेक्ट जो होती है वो डी एंड एफ ऑर्बिटल की होती है, वो ध्यान में रखिएगा। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। एस पी हम नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर होती, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ। और दूसरा ये समझ सकते हैं कि द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द साइज इज ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट और डी एन एफ ऑर्बिटल। तो एक बात ये भी समझ में आ रही है ना कि नाइट्रोजन में जो है डी ऑर्बिटल है ही नहीं, 22, मतलब कि एक ऑर्बिट दूसरी ऑर्बिट। तो यहाँ एस है, यहाँ एस पी दो ही है, डी नहीं है। डी तो 3 से स्टार्ट होता है, एस पी डी। और जो 4 आता है वहां पे होता है एस पी डी एफ, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो एफ का सवाल ही नहीं आता है। अब हम फास्फोरस की बात करें तो वो है 33, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। तो 3 में 3 ऑर्बिटल है, एस पी और डी। तो यहाँ पे डी और डी का शील्डिंग इफेक्ट आएगा, लेकिन ओनली ऑफ डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दो, अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो सिर्फ सीधा साधा रीजन आप प्रिपेयर कर लो। और अगर ये 2 पॉइंट में भी आप नहीं जाना चाहते हो तो सीधा ये कंसेप्ट, एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, सॉरी एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब आयोनिक रेडियस, ये ट्रेंड भी कंफ्यूजन वाला है, मेमोरी बेस्ड आपको याद रखना, इरेगुलर ट्रेंड्स है। तो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नाइट्रोजन टू बिस्मथ, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक रेडियस इंक्रीजेस, आयोनिक रेडियस, एटॉमिक नहीं। आर्सेनिक टू एंटीमनी रेडियस डिक्रीजेस, एंटीमनी टू बिस्मथ आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि आयोनिक रेडियस क्या है। जैसे हम कोई आयोनिक कंपाउंड लेते हैं, ये है आयोनिक कंपाउंड, ये NaCl। तो हम 11th स्टैंडर्ड में इसके आयोनिक रेडियस की डिस्कशन करते थे। जब ये सभी एलिमेंट एज ए आयन होते तो उसकी रेडियस या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो इसकी रेडियस में क्या फ़र्क आता है। तो सीधा मैंने कंसेप्ट एकदम ल्यूसिड मैनर में यहाँ लिख के दिया है, आप प्रिपेयर कर लीजिए। डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस, आर्सेनिक टू एंटीमनी डिक्रीजेस, एंटीमनी टू बिस्मथ इंक्रीजेस। हम इसमें रीजन नहीं देंगे, ठीक है। काफ़ी फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें, तो आपको इतना ही याद रखना है कि ये ट्रेंड इरेगुलर है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है। और आर्सेनिक टू एंटीमनी डिक्रीजेस, एंटीमनी टू बिस्मथ इंक्रीजेस। चलिए आगे चलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बढ़िया ट्रेंड है। You know, ionization enthalpy means the energy required to remove one electron from outermost orbit. So as we move top to bottom, means down the group, as atomic number increases, covalent radius increases, ionization enthalpy increases. जैसे एटम बड़ा होता जाता है तो उस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ कनेक्शन वीक पड़ता है। मानो कि ये एटम है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और ये एटम है तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये जो छोटी साइज है तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इसको निकालने में बहुत तकलीफ पड़ेगी। और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, साइज मोर डिस्टेंस मोर, तो इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये थोड़ा इजीली निकलेगा। तो अब ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये गलत लिखा है, ये साइन जो है उसको आप डिक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे ही रेडियस बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ये सही है।
as atomic number increases, the ionization enthalpy decreases. Ionization enthalpy decreases. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैथमेटिकल रिलेशन में बोलना चाहूँ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. रेडियस बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, रेडियस घटेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी. लिख सकते हो आप, लिखना हो तो यहाँ पे एज यू लाइक. ये कॉम्पिटिटिव में काम आ सकता है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर दिया है डाउन द ग्रुप. हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन लोअर आर्सेनिक, देन सबसे कम किसकी है तो के बिस्मथ की. ठीक है, तो ये रेगुलर ऑर्डर है, तो रेगुलर ऑर्डर आपको ऐसे ही याद रहेगा. अगर ये कंसेप्ट याद रहेगा तो एस एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. तो ये ऑर्डर आपको प्रिपेयर करना है. नाइट्रोजन ग्रेटर देन फॉस्फोरस ग्रेटर देन आर्सेनिक. अगर हम नेबरिंग ग्रुप का कंपैरिजन करें तो 15 ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 14 नंबर ग्रुप से हालांकि ज्यादा ही आती है. यू नो, इन पीरियोडिक टेबल as we move left to right in any period, then as atomic number increases the ionization enthalpy also increases. तो ग्रुप नंबर 14 के बाद ग्रुप नंबर 15 आता है तो उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा ही आएगी. वो पीरियोडिक ट्रेंड है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ज्यादा है. हम जितना सोचते हैं कि इतनी ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए ग्रुप नंबर 14 से, उससे कहीं ज्यादा है. Why? Due to the extra stability of electronic configuration of group number 15 and that is NS2 आपको 11th में सिखाया गया है कि P3 एंड P6 कोई भी ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड है या कोई भी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो, ये हाफ फील्ड है, ये कंप्लीटली फील्ड है, तो वो स्टेबल होती है. तो यहाँ पे हाफ फील्ड P ऑर्बिटल है आउटर, ये रहा NP3 इन 15, तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन में से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एनर्जी ज्यादा लगती. फॉर एनी एलिमेंट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज इंक्रीजेस. मानो कि कोई एक एलिमेंट में ले लूँ X, उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या होगा? प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा. न्यूट्रल एलिमेंट है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम. एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 1 लेस देन द प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा. अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो उसमें से तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगा. अगर दूसरा निकाल दिया देन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑफ 2, देन मोर अट्रैक्शन इज देयर. इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप एक एक निकालते जाओगे वैसे वैसे न्यूक्लियस के साथ बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा. तो किसी एक एलिमेंट की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव का मतलब है एक एलिमेंट में से बारी बारी 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन निकालना. तो ऑलवेज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन द सेकंड एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन द 3. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. कोई भी एलिमेंट ले लो पीरियोडिक टेबल का, सब में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा ही आएगी. ठीक है, कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं है कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम आ रही हो. अब फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला. देख लो मैंने सिस्टमेटिकली लिखा है. डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप decreases then electropositivity increases. If electropositivity increases then metallic character increases.
नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है is directly proportional to non metallic character. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है is inversely proportional to metallic character. इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो नॉन मेटल होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ध्यान से इसको देखिए, एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लगेगा ऐसे डिस्क्रिप्शन की जगह पे, ठीक है। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जब भी इंक्रीज बोलो तो अपर वाला एरो लगाओ, जब भी डिक्रीज बोलो तो टाइम भी आपका बच जाएगा। तो अगर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो आप देख लो, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमल इज सेमी मेटल, एंड बिस्मथ इज अ टिपिकल मेटल। टिपिकल मेटल हम इसलिए बोलते हैं कि इसमें ये जो पी ब्लॉक है ना, और ये नॉन मेटल के साथ ये आयन की तरह स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है बिस्मथ, कॉपर की तरह स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है, इसलिए हम इसको टिपिकल बोलते हैं कि मेटालिक डिपार्टमेंट जो डी ब्लॉक है पूरा, एस ब्लॉक स्ट्रॉन्ग मेटल्स आर देयर, वहां नहीं है, ये कुछ अलग बस्ती में है। अगर ये स्ट्रॉन्ग मेटल होती तो कहाँ होती, एस ब्लॉक में होती है, तो डी ब्लॉक में होती, ऐसा नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं टिपिकल मेटल। तो बिस्मथ इज अ टिपिकल मेटल। और यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन टू बिस्मथ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नॉन मेटल का मतलब क्या हुआ कि उसमें मेटालिक कैरेक्टर है ही नहीं। मेटलॉइड्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ मेटल के कैरेक्टर है, कुछ नॉन मेटल के कैरेक्टर है। मेटल का कैरेक्टर क्या हुआ बिस्मथ का, मतलब कि उसमें नॉन मेटल कैरेक्टर नहीं है, या तो निग्लिजिबल प्रेजेंट है, क्योंकि हम यहाँ टिपिकल वर्ड यूज कर रहे हैं। चलिए लास्ट, एंड दैट इज अदर। अदर में आता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड एलोट्रोप्स। सी हियर, तो बॉइलिंग पॉइंट सीधा ट्रेंड है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, बॉइलिंग डेंसिटी इंक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो as down the group नाइट्रोजन टू बिस्मथ, as atomic number increases, एटॉमिक मास इंक्रीजेस। कल आपने लिखा है एटॉमिक मास जो है, नहीं एटॉमिक नंबर लिखा है, तो एटॉमिक नंबर जितना इंक्रीज होता है उसके साथ साथ एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है, तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। डेंसिटी इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो पानी को आप बॉइलिंग करोगे, और अगर आपके पास हनी है उसको बॉइलिंग करोगे, तो हनी की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर कोई शरबत आपके पास है, मानो कि रसना है, तो पानी को बॉईल करोगे, रसना को बॉईल करोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट रसना का ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी का मोलार मास के साथ सीधा संबंध है, एटॉमिक मास के साथ भी सीधा संबंध है कि एज मास इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखिए डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन इज लोअर देन द फॉस्फोरस, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ बिस्मथ। ऐसा मेल्टिंग पॉइंट में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट की बात जब आती है तब काफ़ी कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सो मेनी फैक्टर्स आर अफेक्टिंग, नॉट ओनली मोलार मास, not only density, but it's a structure, it's a strength of bonding, it's a 3 dimension arrangement, it's a intermolecular attraction। ये सब चीज़ें, अगर सॉलिड है तो उसकी लेटाइस एंथैल्पी, तो हम यहाँ उसमें जाएंगे नहीं, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट अगर रेगुलर ट्रेंड है तो आप ये मत मान लेना कि मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर ट्रेंड ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट में जो कंसेप्ट आते हैं उससे कहीं ज़्यादा कंसेप्ट मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करने में आते हैं, ठीक है। तो उसका अगर हम देखें, ये जो ये एरो है, ये दूसरा पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट का है, ये वाला। तो डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस,
तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक अगर हम सोचते हैं ऐसा ही जा रहा है, लेकिन आर्सेनिक टू बिस्मथ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। आर्सेनिक का जितना मेल्टिंग पॉइंट है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि बिस्मथ का उससे ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन कम आ रहा है। आप टेबल में देख लीजिएगा बुक में, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 एलिमेंट की वजह से, ये आर्सेनिक, बाकी नाइट्रोजन टू आर्सेनिक तो इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ ये डिक्रीज हो रहा है। और एक बात, नाइट्रोजन के सिवा उस ग्रुप में सभी एलिमेंट जो है वो एलोट्रोपी दिखा रहे हैं। एलोट्रोपी का मतलब सेम एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स। एक एग्जांपल दे दूं तो आपको समझ में आ जाए, जैसे कि कार्बन, कार्बन एलिमेंट है सी, सिंबल उसका, लेकिन उसके फॉर्म कई हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, कोल, कार्बन ब्लैक एटसेट्रा। क्रिस्टलाइन फॉर्म, एमोर्फस फॉर्म, जैसे सब में कार्बन, एलिमेंटल फॉर्म इज कार्बन, बट इट्स एग्जिस्टेंस, देयर नेचर आर डिफरेंट। अगर मैं बोलूँ कि ग्रेफाइट में क्या है तो कार्बन ही है सब, तो डायमंड में क्या है, डायमंड ऑल्सो कार्बन। तो फुलेरिन में क्या है, फुलेरिन ऑल्सो कार्बन, लेकिन ऑल आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कोल क्या है, कोल इज ऑल्सो कार्बन, ठीक है। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ऑल एलिमेंट शोज एलोट्रोपी, सबके एलोट्रोप्स। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है, इसके साथ में पीडीएफ भेज रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है कहीं पे, ठीक है, तो मुझे पूछ लीजिएगा। ये आप मेमोरी बेस पे भी जा सकते हो, ठीक है, और अगर उसको समझना है तो आप समझ भी सकते हो, जैसे कि मैंने थोड़ी ट्राई की है, और आप लोग थोड़ा समझने की ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।